An all-out political war, meanwhile, has also broken out between the BJP and Congress over Narendra Modi's caste after the PM asked the Congress who's an OBC, pointing at himself. Rahul Gandhi has claimed that he's from the Teli caste, which was made OBC by the BJP government in 2000. This claim has now been fact-checked, first by a document shared by the BJP, which shows the Modghanchi caste from where PM Modi belongs, being notified as OBC in 1999. The fact-checking continued when the current Rajya Sabha MP from BJP, Narhari Amin, also former Deputy CM from the Congress in Gujarat, claiming that it was a Gujarat government which notified the Modghanchi caste as OBC in 94, much before Narendra Modi was even an MP or a MLA. Brian Thomas joins us for more details on this story. Brian, a war breaking out over caste in the run-up to the Lok Sabha polls? Well, definitely, Uday, senior Congress leader also Rahul Gandhi now asserted during a brief speech in Jharsuguda, Odisha, on his very concluding day of the Bharat Jodo Nyaya Yatra, he said that the Prime Minister's claim of belonging to the OBC family were misleading. He also, Uday, he also contended that Modi was not born into an OBC family, but rather into a general caste family. He also mentioned that, he also highlighted rather, that the Teli caste to which the Prime Minister belongs was included in the OB list during the BJP government's tenure in Gujarat in 2000, suggesting that Modi, Prime Minister's OBC status was acquired through administrative action rather than by birthright. And Brian, stay with us. We have Arvind Singh, leader of the BJP, also joining us now on NewsX. Arvind Singh, a war over Prime Minister Modi's caste breaking out with the opposition levelling charges. Your response? Arvind Singh, are you able to hear me? जी मैं आपको सुन पा रहा हूं. The question I was asking you is on this opposition charge. Opposition, of course, attacking PM Modi over his caste, also saying that they are the ones who notified this caste in the first place, also saying that Rahul Gandhi also comes from an OBC caste now. देखिए, राहुल गांधी को इस तरह की बदतमीजी करने की आदत है. वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं. इसके पहले भी पिछड़ों पे टिप्पणी करने के मामले में वो पनिष्ड हो चुके हैं. अपने आदत से बाज नहीं आते हैं. और राहुल गांधी जी की जो वर्तमान टिप्पणी है, ये न केवल घाटी समाज का अपमान है, अपितु संपूर्ण पिछड़े वर्ग का अपमान है. और नरेंद्र मोदी जी तो मुख्यमंत्री बनने के 2 वर्ष पहले ही उनकी जाति नोटिफाई हुई थी पिछड़ों में, और जो वहां की स्टेट गवर्नमेंट है और केंद्र सरकार है उसके द्वारा गठित कमेटी की सिफारिश थी कि घाटी समाज सर्वाधिक पिछड़े में से आती है और उसको पिछड़े में शामिल किया जाना चाहिए. तो इसके बावजूद भी इस तरह के उलूल जुलूल बयान देना. और एक बात और ध्यान रखिए, कांग्रेस पार्टी डे 1 से पिछड़ों की विरोधी रही है. और अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में बयान दिया कि किस तरह से जवाहरलाल नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को जो पत्र लिखा था उसमें कहा था कि वो आरक्षण के विरोधी है. यानी पिछड़ों को आरक्षण मिले, पिछड़ों के साथ सामाजिक न्याय हो, इसके लिए कांग्रेस हमेशा विरोध में रही. और आज राहुल गांधी जी जातीय जनगणना की बात करते हैं. जो पार्टी 5 दशकों तक सत्ता में रही हो और सत्ता में रहते हुए कभी जातीय जनगणना न कराई हो और उसका विरोध करती रही हो, उस पार्टी के नेता द्वारा इस तरह की बात करने का कोई औचित्य नहीं होता है. ये केवल उनका चुनावी जवाब ले लेते हैं. Arun Tripathi, leader of the Congress, also joining us now. Arun Tripathi, you can respond to Arvind Singh's point. He is saying this is very unfortunate the way Rahul Gandhi is speaking and Congress leaders are speaking about PM Modi and the OBC community. Arun, your response on this caste debate? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगा कि राहुल गांधी जी ने जो कहा है वो मोदी जी को ही कोट किए हैं. मोदी जी कहते हैं, सदन में भी कहे हैं और बाहर भी कहते हैं कि मैं जन्मजात ओबीसी से हूं. अब आप ही बताइए, क्या मोदी जी जन्मजात ओबीसी से हैं? यह स्पष्टीकरण क्यों नहीं दे देते? हमें पता है मोदी जी जन्मजात ओबीसी नहीं है. वो सामान्य वर्ग में पैदा हुए थे, बाद में उनकी कम्युनिटी ओबीसी की गई. दूसरी बात, अभी इन्होंने कहा कि कई दशकों तक कांग्रेस सत्ता में थी, जाति जनगणना नहीं की. तो भाई साहब को पता ही नहीं है कि कितनी बार जाति जनगणना हुई है. भाई साहब को पता ही नहीं है कि 2011 में भी जाति जनगणना हुई है. राहुल गांधी जी परसों के भाषण में कहें कि उसको लागू कर दीजिए, क्यों नहीं लागू कर देते? तो टीवी पे बैठ करके झूठ बोलना
इन लोगों की आदत हो चुकी है। जब सदन में झूठ बोल सकते हैं प्रधानमंत्री जी, तो बाकी लोग तो झूठ बोलेंगे ही। लेकिन ये सत्य बात है, पिछड़े वर्ग का विरोध करने वाला भारतीय जनता पार्टी है, दलित समाज का विरोध करने वाला भारतीय जनता पार्टी है। आज तक कोई योजना 10 साल में मोदी जी ओबीसी और एससी कम्युनिटी के लिए नहीं ला पाए। 10 साल कांग्रेस शासन में थी, एससी ओबीसी कम्युनिटी के लिए, दबे कुचले लोगों के लिए मनरेगा जैसी योजना लाई गई, जो देश की सबसे बड़ी योजना है। ये शायद ये भूल जाते हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा कि मोदी जी क्यों नहीं स्पष्टीकरण दे देते, उनको देना चाहिए। अरविंद सिंह जी, मैं इसको रिस्पॉन्ड करना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि कांग्रेस जो है अनुसूचित जाति की पिछड़ों की हितैषी है। मैं 2 उदाहरण दूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को महात्मा गांधी के कहने पे जवाहरलाल नेहरू ने अपने इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल किया, लेकिन आपको पता है 2 साल 2.5 साल के अंदर अंदर अंबेडकर को बाहर जाना पड़ा और प्रथम आम चुनाव हुए तो नेहरू उनसे इतनी ईर्ष्या करते थे कि उनके खिलाफ उन्होंने बॉम्बे में कैंडिडेट उतारा और केवल कैंडिडेट ही नहीं दिया तो अंबेडकर के खिलाफ प्रचार करने वो मुंबई गए, 3 दिन तक वहीं जमे रहे और उन्होंने सुनिश्चित किया कि अंबेडकर संसद में पहुंचने न पाए। उसके बाद वो चुनाव अंबेडकर को दुर्भाग्य से हारना पड़ा। उपचुनाव में दोबारा 2 वर्ष बाद अंबेडकर जी भंडारा गोदिया से चुनाव लड़े तो वहां भी कांग्रेस ने कैंडिडेट उतारा और ये सुनिश्चित किया कि वो संसद में न पहुंचे। जिस भारतवर्ष को संविधान बाबा साहब अंबेडकर ने दिया है, कांग्रेस के प्रयासों के कारण वो उस संसद में उनके द्वारा संविधान के द्वारा ही गठित, उनके संविधान के अनुरूप जो गठित संसद था उसमें बाबा साहब नहीं पहुंच पाए। दूसरी बात, मंडल आयोग के कमिश्नरों को दबा के रखने वाली कांग्रेस पार्टी है, उसने कभी लागू नहीं किया। बीपी सिंह जब प्रधानमंत्री बने और भारतीय जनता पार्टी उसको बाहर से सपोर्ट कर रही थी, उस समय मंडल आयोग कमीशन को लागू किया गया। चाहे दलित समाज के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने की बात हो या ट्राइबल समुदाय के व्यक्ति को राष्ट्रपति बनाने की बात हो या पिछड़ों को आगे लाने की बात हो, हमेशा कांग्रेस इसके विरोध में रही है और कांग्रेस ने कभी भी दबे कुचले समाज के लिए, उनको आगे लाने के लिए कभी भी कहा। अब इनकी स्थिति खराब हो गई है, राजनीतिक जमीन इनके पैरों के नीचे से निकल गई है तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं। देश की जनता जानती है कि बात करने से कुछ नहीं होता है, काम करने से कुछ होता है और हमने काम किया है। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी में सर्वाधिक अनुसूचित जाति के लोग, अनुसूचित जनजाति के लोग, पिछड़े समुदाय के लोग चुन कर आए हैं और सरकार में भी वो शामिल है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.